A very good morning to all my dear students. I hope all of you are doing well. In our previous class, we have started the fifth chapter of your book, that is organizing. We have discussed the meaning of organizing function and we have started the organizing process. Till yet, we have discussed the first 3 points of this process, that are identification and division of work, then after departmentalization, and then the third point, assignment of duties. Point number 4 also we have started, but I have given you the task to read it from your book, right? Let's just recall the fourth point of this process. In fourth point, we basically decide who will report to whom. It means each and every individual is made known the name of individual to whom he has to submit his work, or from whom he can ask his or her doubts. आप अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो कौन आपसे हायर अथॉरिटी पे बैठा है, किसके पास सबसे ज्यादा अथॉरिटी है, और कौन आपसे कम अथॉरिटी पे, कौन कौन ऐसा है जो आपसे आके अपने डाउट्स पूछ सकता है, और कौन कौन ऐसा है जिससे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, ये बता दिया जाएगा इन पॉइंट नंबर 4। अब यहाँ पे इस फोर्थ पॉइंट की दो कीवर्ड्स हैं, एक तो हु विल रिपोर्ट टू हूम और एक असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिफरेंट पीपल, और एक है क्रिएशन ऑफ मैनेजरियल लेवल्स या क्रिएशन ऑफ मैनेजरियल हायरार्की। इसमें हम क्या करते हैं, हमने ये देख लिया कि किस किस पोजीशन पे कौन कौन आने वाला है। जब ये पोजीशंस बन जाएगी तो सबको पता होगा। जैसे अब मैं बात करूं ऑर्गेनाइजेशन में, ए चेयरमैन है, बी डिपार्टमेंटल हेड है और सी सब डिपार्टमेंटल हेड है। ठीक है, सी क्या है, सब डिपार्टमेंटल हेड है। तो यहाँ मुझे पता चल जाएगा दैट ए विल गिव इंस्ट्रक्शंस टू बी एंड बी विल गिव इंस्ट्रक्शंस टू सी। सी इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम विल ask B to solve his or her problem, and B in case of any problem will ask A to solve his or her problem. तो बेसिकली हमें पता चल गया who is my superior and who is my subordinate. तो ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया जाता है इन द फोर्थ स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। बुक रीडिंग जरूरी है इस पॉइंट की। कुछ पॉइंट्स है जो आपको हाईलाइट करने होंगे, कुछ वर्ड्स है जो आपको हाईलाइट करने होंगे। सो हैव अ लुक एवरीवन, आई एम रीडिंग द पॉइंट फॉर यू। Establishing reporting relationship. ये कह रहे हैं after grouping the activities in different departments, the employees have to perform the job. And to perform the job, every employee needs some authority. ये तो सिर्फ आपकी information के लिए दिया हुआ है, लिखना हमें ये नहीं, right? In order to perform the work, we need some authority. Now, in the fourth step of organizing process, all the individuals are assigned some authority matching to the job they have to perform. ये sentence लिखना compulsory है। फोर्थ स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में इंडिविजुअल्स को क्या दे दी जाती है, अथॉरिटी दे दी जाती है। जो काम उनको करना है उस काम से मैच करती हुई पावर उनको दे दी जाएगी। द असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी रिजल्ट्स इन क्रिएशन ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप and the question who reports to whom is clarified. ये कह रहे हैं whenever we are assigning authority to different individuals, in their mind a concept gets clear that whom we have to report, who are our subordinates and who are our superiors. Okay, then the individual of higher authority becomes superior and with less authority becomes subordinate. The one who is having more authority becomes the person who will command, who will give the commands and who will check the activities, and the person with the less authority has to follow the commands. He becomes the subordinate. Now, with the establishment of authority, managerial hierarchy gets created and principle of scalar chain follows this hierarchy. ये क्या कह रहे हैं, मैनेजरियल जो चेन ऑफ कमांड होती है, ए विल रिपोर्ट टू बी, बी टू सी, सी टू डी, ये जो चेन बन जाती है, ये चेन इसी फोर्थ स्टेप से बनती है। नाउ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी हेल्प्स इन क्रिएशन ऑफ मैनेजरियल लेवल। सैंपल पेपर में बोर्ड के ये 1 मार्क में आया हुआ है और किसी बच्चे को इसका आंसर नहीं आ पाता, क्योंकि हम इतना डेप्थ में स्टडी करते ही नहीं। ठीक है, लास्ट ईयर जब सैंपल पेपर हम डिस्कस कर रहे थे तो इस क्वेश्चन का आंसर किसी को नहीं आया। क्वेश्चन था द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी हेल्प्स इन क्रिएशन ऑफ डैश। क्या क्रिएट करता है अथॉरिटी का एस्टैब्लिशमेंट? तो मैनेजरियल लेवल और मैनेजरियल हायरार्की विल बी द करेक्ट आंसर। अब आगे, द मैनेजर्स विद मैक्सिमम अथॉरिटी आर ट्रीटेड एज टॉप लेवल मैनेजमेंट, managers with less authority become a part of middle level, and with minimum authority becomes a part of lower level management. So with the establishment of the authority, the individuals can perform their job and everyone knows who will report to whom.
पॉइंट दिख बड़ा रहा है लेकिन पॉइंट इजी सा है, कंसेप्ट बहुत इजी सा है, छोटी सी चीज है, छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो 4 हेडिंग्स हैं आपके ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस की। नंबर 1 आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, नंबर 2 यू हैव टू ग्रुप द जॉब्स, यू हैव टू मेक द डिपार्टमेंट्स, number 3 we have to assign the duties, and number 4 establishing reporting relationship. रिपोर्टिंग रिलेशनशिप मींस हु विल रिपोर्ट टू whom, कौन किसको बताएगा कि क्या कैसे करना है और कौन किससे पूछेगा। अब आगे देखिए, ऑर्गेनाइजिंग डज नॉट इंक्लूड, क्या होगा आपके अकॉर्डिंग आंसर? क्या बात ऑर्गेनाइजिंग में नहीं डिसाइड की जाएगी? अब हमें तो लग रहा है चारों ही ऑप्शन अलग से। एनीवन हु कैन गिव द आंसर? एनीवन? नो? बी ऑप्शन, हाउ विल बी डन। चलिए सोचिए, आप सबको टास्क दिया है, क्लास के बाद आराम से सोच के आंसर टिक करें, ठीक है? कौन सा पार्ट नहीं है ऑर्गेनाइजिंग का ये भी आपको डिसाइड करें। तो ये क्वेश्चंस आपको करने हैं अपने लेवल पे। जस्ट हैव अ लुक, हमने सिर्फ प्रोसेस पढ़ा है, उस प्रोसेस पे 4 केस स्टडीज आ गई है। पहले आप पढ़ के देखिए, ये देखिए कितनी बड़ी सी केस स्टडी है। जब इतनी बड़ी केस स्टडी आती है ना, तो बिफोर रीडिंग द क्वेश्चन व्हाट यू आर सपोज, और आती है बोर्ड में भी ऐसी केस स्टडीज आती है, ठीक है? आजकल तो ये ट्रेंड भी चल रहा है कि ऐसी केस स्टडी दे देंगे और उसके नीचे उसी से रिलेटेड 4 एमसीक्यूज दे देंगे। तो जब भी इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा, आप सबसे पहले लास्ट के पार्ट में रीड करेंगे कि ये आपसे पूछना क्या चाह रहे हैं, ठीक है? लास्ट वाली ये जो 1, 2 और 3 है, ये रीड करोगे, तब जाके आप उसके बाद केस को पढ़ना, आराम से आंसर होगा। चलिए, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस से रिलेटेड है, अभी इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि पहले आपको प्रोसेस याद होना चाहिए, तब जाके वो केसेस आप कर पाए। कल की क्लास में, कल की जो भी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें डिस्कशन ले लेंगे हम इन क्वेश्चंस का, तब तक आप खुद एक ट्राई जरूर कीजिएगा इनको सॉल्व करने। चलिए, ऑर्गेनाइजिंग के क्या बेनिफिट्स है याद करने पड़ेंगे। जब आप एट लास्ट याद करोगे आपको लगेगा हम तो कंफ्यूज हो गए, प्लानिंग के बेनिफिट्स, फिर कंट्रोलिंग के भी आ गए थे, ऑर्गेनाइजिंग के भी हैं, ऐसे डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सबके एडवांटेजेस आपको पढ़ने हैं, सबकी सिग्निफिकेंस पढ़नी है। तो हमें तो कंसेप्चुअली याद करना है, कंसेप्ट आता है तो पॉइंट्स याद होंगे, कंसेप्ट नहीं आता तो पॉइंट याद हो ही नहीं सकते। तो ध्यान से देखिए, बेनिफिट्स एंड स्पेशलाइजेशन। काम में स्पेशलाइजेशन कब होता है? जब आप डिवीजन ऑफ वर्क करते हो। तो डिवीजन ऑफ वर्क हमने पढ़ा ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में, तो यहाँ पे बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन किसकी इंपॉर्टेंस बनेगी? ऑर्गेनाइजिंग। ये कह रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग में हर इंडिविजुअल को कुछ पार्ट ऑफ वर्क दिया जाता है। आपका फर्स्ट स्टेप ही यही है, डिवीजन ऑफ वर्क, और जब हम वर्क को डिवाइड करते हैं तो अल्टीमेटली इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। 2 रीजंस है, बिकॉज अ इंडिविजुअल इज गिवन जॉब अकॉर्डिंग टू हिज स्किल, and also because he is performing the job again and again, he will become specialized, and when he will become specialized it will give the benefits of specialization to the organization also. concept आ गया तो point आ जाएगा, concept नहीं आया तो point भी नहीं आएगा। number 2, clarity of working relationship. Who is my boss and to whom I have to report and who will ask questions from you? ये सब हमें कब पता चलेगा? जब हमने ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन परफॉर्म किया, तो एक वर्किंग रिलेशनशिप क्लियर हो जाएगा। हु विल रिपोर्ट टू हुम, ये क्लियर हो जाएगा। हु इज द सुपीरियर एंड हु इज द सबऑर्डिनेट, ये क्लियर हो जाएगा। कब क्लियर हो जाएगा? व्हेन यू आर परफॉर्मिंग द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट सिंपल से। अब इन पॉइंट्स के अंदर मैटर आपको वही लिखना है जो मैं बता रही हूँ, इधर उधर से आप सोचो हेडिंग लर्न कर लो और इसके अंदर से कचरा डालो, बेनिफिट्स एंड स्पेशलाइजेशन, और आप अपनी ट्रिक्स लगा दो और इसमें लिख दो द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन लीड्स टू स्पेशलाइजेशन बिकॉज इट इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। रजिस्टर की 2 लाइनें बढ़ जाएगी और आपको लगेगा कि एक्सप्लेनेशन में मार्क्स मिल जाएंगे, तो द आंसर इज नो। जब तक आपने स्पेशलाइजेशन में डिवीजन ऑफ वर्क वाली बात नहीं लिखी, तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, आप अगर ये लिख दो द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रिजल्ट्स इन क्लैरिटी ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप, और सोच लो कि बस 2 लाइनें लिखनी होती है, हमने तो लिख दी, मार्क्स मिल जाएंगे, तो द आंसर इज नो। जब तक आप इसमें ये नहीं लिखोगे कि सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशंस गेट एस्टैब्लिश्ड, तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट,
ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगेन जब आपने डिवीजन ऑफ वर्क किया और जॉब डिस्क्रिप्शन में सबको बता दिया व्हाट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो कोई भी काम रिपीट नहीं होगा, कोई भी काम एक बार से ज्यादा नहीं होगा। हर इंडिविजुअल को पता है what is my duty and what are the tasks which I have to perform। तो ऐसी कंडीशन में जब काम रिपीट नहीं हो रहा है तो क्या होगा, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा, रिसोर्सेज की वेस्टेज नहीं होगी। तो पॉइंट का जो की मैटर है उसको ध्यान में रखें, उसको चेंज नहीं करें। नेक्स्ट देखिए, अडॉप्शन टू चेंज, दिस इज इंपॉर्टेंट। अडॉप्शन टू चेंज ये बोल रहे हैं अगर बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आता है, हमने पढ़ा है ना बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक, तो हम क्या करेंगे, हमने ऑर्गेनाइजिंग में प्रॉपर वे में डिपार्टमेंट्स बनाए हुए, तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को डिस्टर्ब ना करके हम उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को चेंज कर देंगे, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में चेंज को इनिशिएट कर देंगे। जिस भी डिपार्टमेंट में चेंजेस आ रहे हैं उसी डिपार्टमेंट में उसको इनिशिएट करेंगे ताकि बाकी के डिपार्टमेंट्स डिस्टर्ब ना हो। तो ये आपको इस पॉइंट में यही बताना चाह रहे हैं, इसको मैं आपके लिए रीड कर देती हूँ, है ना, जो पॉइंट थोड़े डिफरेंट है वो हम रीडिंग में ले लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, whenever changes take place in business environment, then with the help of the organizing function, these changes can be adopted systematically, because organizing function creates different department and groups related activities under each department. With this, changes can be adopted only in that area which may be affected by these changes, and changes can be easily communicated to whole organization through departments. Organizational structures can be suitably modified according to change. जिस डिपार्टमेंट में चेंज आ रहा है उसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को छेड़ेंगे और सिर्फ उसको now the next one effective administration. Administration is basically the function of top level management। जो लोग टॉप लेवल पे काम कर रहे हैं ना उनका काम होता है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन करना, मैनेजमेंट करना। उनका वर्क मोर इफेक्टिव हो जाता है क्योंकि उन्होंने क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन में रिपोर्टिंग रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर दिया, उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए और डिपार्टमेंटल हेड बना दिए, फिर उन्होंने माइंड में रखा कि कैसे उनको वेरियस डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन करना है, तो इससे इनका वर्क इजी हो जाएगा। भाई एक मैनेजर सारा काम हैंडल करेगा, आप सोचिए मैनेजर को सब काम हैंडल करना है। सिचुएशन 1, सिचुएशन 2 में मैनेजर ने 4 सब डिपार्टमेंट बना दिए और अब मैनेजर को सारा काम नहीं देखना, अब मैनेजर को केवल इन चारों हेड से रिपोर्ट लेनी है, तो सेकेंड सिचुएशन थोड़ी इजी हो जाएगी ना। तो ऑर्गेनाइजिंग में लोग यही करते हैं, अपने अंडर में सबऑर्डिनेट्स रख देते हैं और उनको काम दे देते हैं और खुद एट लास्ट उनसे सारी रिपोर्ट्स ले लेते हैं। आगे देखिए, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क होगा, डिपार्टमेंटलाइजेशन होगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइजेशन आएगा, तो आप बहुत इजीली अपनी एक्टिविटीज को एक्सपेंड कर सकते हो, आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो, तो एक्सपेंशन इजी हो जाएगा। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। आता है हाउ ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। पर्सनल मीन्स द पर्सन्स वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में मैनेजर अपने लेवल का कुछ काम अपने वर्कर्स के साथ शेयर करता है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं। जब मैं आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दूंगी, जब मैं आपको कुछ काम दूंगी, तो अल्टीमेटली आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स ट्रांसफर ऑफ पावर। मैं अपनी पावर आपके साथ जब शेयर करती हूँ तो उसको डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहते हैं। ये ऑर्गेनाइजिंग में बहुत जरूरी है। अगर मैनेजर ने 4 डिपार्टमेंटल हेड बनाए, मैं मैनेजर हूँ, मैंने परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन, मार्केटिंग और सेल्स बनाया, तो ये जो हेड है मुझे इसको पावर भी तो देनी पड़ेगी। तो ये पावर जब मैं दूंगी तो इस हेड का डेवलपमेंट होगा या नहीं होगा, इसको काम करना आए, राइट। तो क्या कह रहे हैं, बाय डेलीगेटिंग द रूटीन वर्क द मैनेजर्स कैन कंसंट्रेट टू डेवलप न्यू मेथड्स एंड वेज ऑफ परफॉर्मिंग द जॉब। It gives them time to develop new technologies and areas for growth of the company. Delegation not only reduces the workload of manager, it also helps them to use and realize their full potential for more creative work. ये वाली बात तो अलग है, मैनेजर्स की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, आपको तो उन लोगों की डेवलपमेंट के बारे में भी लिखना है जो रूटीन वर्क कर रहे हैं, क्योंकि वो भी कुछ सीखेंगे, वो भी नया काम करना सीखेंगे। इसमें पर्टिकुलरली मैनेजर के बारे में ज्यादा फोकस किया है कि व्हेन आई एम गिविंग माय सम वर्क टू यू, तो अब मैं मेन काम पे फोकस कर पाऊंगी, और जब मैं मेन काम पे फोकस करूंगी तो अल्टीमेटली मेरा भी डेवलपमेंट होगा।
So we have completed 3 important topics of the chapter. Number 1, meaning of organizing function. Number 2, the organizing process. And number 3, the points of importance of organizing. काफी बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. काफी बार थोड़ा सा घुमा फिरा के देते हैं, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट in which job description document is prepared. या फिर explain the significance of the function of management which is related with creation of managerial hierarchy या which is related with distribution of authority and responsibility. कोई भी कीवर्ड दे के आपको 5 मार्क्स में उसकी इंपॉर्टेंस पूछ ले तो आपको कीवर्ड सारे पता होने चाहिए. चलिए भाई, हमने इंपॉर्टेंस पढ़ ली. नेक्स्ट टॉपिक देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. क्या होता है स्ट्रक्चर, ये आपसे पूछ रहे हैं. स्ट्रक्चर बेसिकली वो फ्रेमवर्क है जिस फ्रेमवर्क से हम काम करने वाले हैं. जैसे हमारी फैमिली माइक्रो फैमिली स्ट्रक्चर है या जॉइंट फैमिली है, ठीक है, वैसे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है. तो ये क्या कह रहे हैं, when the managers are performing the organizing function, an organizational structure gets created automatically which defines the job position, the authority and responsibility of different employees. जब मैनेजर ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो एक स्ट्रक्चर बन गया. उस स्ट्रक्चर से पता चल गया कि अलग अलग जॉब पोजीशंस कौन सी है, अलग अलग लोगों की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने वाली है और उनकी कितनी ड्यूटीज होने वाली है. अब इस स्ट्रक्चर की डेफिनेशन देखिए. ये दोनों डेफिनेशंस आपको ध्यान होनी चाहिए, केस स्टडी में पूछते हैं. Network of job positions, responsibilities and authorities at different levels. एक जो हम कहते हैं ना, एक ढांचा बन गया, एक बेस बन गया है. जैसे मैंने प्लान किया that I have to start a school. अब इसमें एक बेस बन गया, प्रिंसिपल, देन वाइस प्रिंसिपल, देन 3 डिपार्टमेंट्स. सपोज हमने प्राइमरी, मिडिल और सेकेंडरी पे स्कूल स्टार्ट करनी है तो ये 3. फिर इस पे एक हेड चाहिए होगा, इस पे हेड चाहिए होगा, इस पे हेड. प्राइमरी में आपको कितने टीचर्स चाहिए होंगे, सेकेंडरी में कितने और किनके पास क्या क्या पावर्स होंगी, मिडिल में कितने और किनके पास क्या क्या पावर्स होगी, इंचार्जेस के पास क्या पावर होगी. ये जो स्ट्रक्चर रेडी हुआ है, ये जो बेस रेडी हुआ है, इसी स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं. तो इट इज बेसिकली अ नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज, अलग अलग लेवल पे. एक और डेफिनेशन है, a framework within which managerial and operational tasks are performed. ये भी बोर्ड का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क क्वेश्चन, क्योंकि हमें 1 मार्क के लिए रेडी करना है, राइट. तो आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, which among the following is a framework within which managerial and operational tasks are performed. तो फ्रेमवर्क कौन सा होता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. Organizational structure is basically the framework within which the managerial and operational activities will be performed. ये रिलेशन बताता है लोगों का, रिसोर्सेज का और काम का. फिजिकल, फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्स में रिलेशन एस्टैब्लिश करता है. नेक्स्ट, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट गिव्स शेप टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. अगेन अ इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन. ये भी बोर्ड लेवल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको फिलअप में दे सकते हैं. डैश गिव्स अ शेप टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. तो आपका आंसर होगा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. क्या होता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, अभी पढ़ेंगे. मैंने आपको पहले भी बोला था, पूनम गांधी की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है. ये अगला सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रिजल्ट्स इन टॉल स्ट्रक्चर, whereas wide span results in flat structure. समझ नहीं आया होगा, बाउंसर गया होगा, अभी समझते हैं इसको. पहले समझते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है. Span of management means the number of subordinates that can work under one superior. मैं एक साथ कितने बच्चों को हैंडल करती हूँ वो मेरा स्पैन ऑफ टीचिंग है. मैं एक साथ कितने वर्कर्स को हैंडल कर सकती हूँ वो मेरा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है. कितने वर्कर्स से मैं अच्छे से काम करवा पाऊंगी वो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होगा. अगर मैं कम लोगों से काम करवा पाऊंगी तो एक टॉल स्ट्रक्चर बनेगा ना. टॉल स्ट्रक्चर कैसा, देखिए मैं आपके लिए ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको. एक मैनेजर है, वो अपने अंडर में 2 ही लोगों को काम करवा सकता है. अब क्या होगा, वो 2 ही लोगों को काम करवा सकता है तो वापस वो 2 अपने अपने काम आगे डिवाइड करेंगे. अब ये भी 2 पर्सन्स को वर्क करवा सकते हैं. फिर आगे ये 2 ऐसे करते करते हमारा जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा टॉल बनेगा, थोड़ा सा स्ट्रेट बनेगा. लेकिन मैं बात करूं, ये मैनेजर अपने अंडर में 6 लोगों को काम करवा सकता है. तो 6 वर्क तो यही हो गए.
अब फिर ये लोग अपने अंदर दो दो को काम करवाएंगे, तो ये थोड़ा फ्लैट स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, काम फ्लैट वे में कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट लिमिटेड है, आप लिमिटेड लोगों को हैंडल कर सकते हो, तो जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा टॉल रहेगा। और अगर आप बहुत सारे लोगों को एक साथ हैंडल कर सकते हो, तो आपका स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा फ्लैट रहेगा। फ्लैट यानी लिमिटेड पार्ट्स होंगे और एक ही जना बहुत सारे काम को हैंडल कर रहा होगा। अब यहाँ पे स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग गिवन है। It means how many employees or subordinates can be effectively managed by one manager, ठीक है, या कितने सबऑर्डिनेट्स को एक सुपीरियर कंट्रोल कर सकता है। जब अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशन डिसाइड होता है तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को ध्यान में रखा जाता है। भाई एक इंचार्ज एक साथ कितने टीचर संभाल पाएगा, ये ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। After deciding the span, scalar chain is developed for all the superiors and subordinates. Because of the span control clearly span of control clearly specifies who has to report to whom. ये कह रहे हैं कि स्पैन ही क्लियरली बताएगा कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किससे कितना काम करवाएगा। अब ये जो पार्ट है ये काफी बच्चे तो छोड़ ही देते हैं। क्या करते हैं कि अच्छा हेडिंग दिख रही है मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यानी हमें तो बस ये मीनिंग पढ़ना है, काम खत्म। काम खत्म नहीं, इसके अंदर 1 मार्क क्वेश्चंस है बहुत सारे, दो तो इसी की डेफिनेशंस आपको याद रखनी है। फिर आपको याद रखना है कि यही स्पैन ऑफ मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को शेप देता है। फिर याद रखना है टॉल स्ट्रक्चर कब क्रिएट होगा, जब नैरो स्पैन है, और वाइड कब क्रिएट होगा, जब फ्लैट स्पैन है, और स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। तो आज बेसिकली हमने डिस्कस किया द मीनिंग ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, एंड देन आफ्टर द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड मीनिंग ऑफ स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। कल इस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस कंप्लीट करके टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तब तक आप वो केसेस जरूर पढ़ के रखना जो मैंने आपको बताए थे, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। पूछना तो मैडम हमें होता ही नहीं है, पूछते तो हम नहीं है। चलिए, नो इश्यूज, हैव अ नाइस डे एवरीवन। मेक श्योर इकोनॉमिक्स की क्लास में ये जो अभी बच्चे हैं ये सब होने चाहिए। ऐसा होता है कि इकोनॉमिक्स की क्लास में आप में से आधे बच्चे गायब हो जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सभी मुझे इकोनॉमिक्स की क्लास में भी मिलने चाहिए हो। तो मिलते हैं आप सबसे इको की क्लास में। हैव अ नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ।